Hi everyone, welcome to today's class, and today we will study the topic uh, sexual reproduction in fungi. This topic is very important because classification of fungi is based on sexual reproduction. So first of all, we will study some terminologies. So first terminology is isogamy or isogamous condition. Isogamous. Number two is anisogamous. And third is oogamous. So if this is female gamete and this is male gamete, if both the gametes are similar, then such condition is called as isogamous condition. See, female gamete and male gamete both are similar. Here male gamete, female gamete both are non-motile. Here also male gamete and female gamete both are similar, both are motile. Anisogamous condition. In anisogamous condition, female gamete and male gametes both are dissimilar. So female gamete is non-motile, male gamete is motile, or female gamete may be motile and male gamete may be non-motile, any condition. But in oogamous condition is different. This is female gamete and this is male gamete. In oogamous condition, see here, female gamete is larger than male gamete, larger than male gamete, and always non-motile. वो non-motile ही होगा, first point. Secondly, male gamete is motile, male gamete motile होगा, male gamete is motile. And third, fertilization takes place in or within. Fertilization takes place within female sex organ. It is called as oogamous condition. So all this condition, isogamous condition, anisogamous condition and oogamous condition, all these three conditions are found in Phycomycetes. Then in Ascomycetes, sex organs. In Ascomycetes, what happened? In Ascomycetes, sex organs present, but gametes are absent. In Basidiomycetes, sex organs are absent and gametes are absent, but sexual reproduction is there. So in Basidiomycetes, sex organs absent as well as gametes absent. But sexual reproduction is there. Sexual reproduction takes place in Basidiomycetes. And last one, that is Deuteromycetes. In Deuteromycetes, this is the first group of fungus
Phycomycetes, second Ascomycetes, and third Basidiomycetes, and fourth one is Deuteromycetes. Deuteromycetes. In Deuteromycetes, asexual reproduction is present. Asexual reproduction is there. In Deuteromycetes, asexual reproduction is there, but sexual reproduction is not observed in Deuteromycetes. Deuteromycetes में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व नहीं किया गया है. तो इस तरह से देखो, दिस इज रिवर्स ऑर्डर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये है, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑर्डर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इसे हम नाम देते हैं रिवर्स ऑर्डर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही फंगस के स्ट्रक्चर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है? सिंपल हो रहा है. जैसे फाइकोमाइसिटीज में सब प्रेजेंट है, आइसोगैमस कंडीशन, एनिसोगैमस कंडीशन, ओगैमस कंडीशन. एस्कोमाइसिटीज में सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. इन एस्कोमाइसिटीज सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट बट गैमिट्स absent. बिसाइडियोमाइसिटीज में सेक्स ऑर्गन absent एंड गैमिट्स, सेक्स ऑर्गन absent, गैमिट्स absent बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर. बट इन ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अनआइडेंटिफाइड. मतलब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया है, ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर. इसी को बोलेंगे रिवर्स ऑर्डर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. मतलब फाइकोमाइसिटीज पहला ग्रुप है, एस्कोमाइसिटीज दूसरा है, बेसाइडियोमाइसिटीज तीसरा है, ड्यूटेरोमाइसिटीज चौथा है. तो इसमें तो सिंपल होना चाहिए और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ना चाहिए. तो यहाँ उल्टा हो रहा. फाइकोमाइसिटीज में रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स है और इधर थोड़ा सिंपल हो रहा. तो दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑर्डर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो लिख लीजिए वीडियो पॉज करके. नेक्स्ट, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट. नेक्स्ट स्टडी करेंगे हम गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट. गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट. Gamentangial contact. So gamentangial contact takes place. Gamentangial contact takes place between hyphae of gamentangial contact takes place between hyphae of same mycelium. Hyphae of same mycelium. Gamentangial contact takes place between hyphae of same mycelium. मतलब एक ही फंगस है, एक ही फंगस की जो पूरी बॉडी है दैट इज कॉल्ड एज माइसेलियम. और उसी पूरे माइसेलियम, एक फंगस के माइसेलियम में दो अगर हाइपी में कांटेक्ट होता है तो दैट इज कॉल्ड, तो उसे बोलते हैं गैमेटेंजियल कांटेक्ट. हाँ देखो, ये एक हाइफा है, दिस इज हाइफा. फंगस एक ही फंगस है, ये अलग अलग नहीं. ये एक हाइफा है, इसमें एक हाइफा यहाँ पर मैंने निकाला, फिर ये दूसरा हाइफा यहाँ पर निकाल देती, ये दूसरा हाइफा, थोड़ा सा एक ये हाइफा है और ये दूसरे कलर से निकालेंगे, ब्लैक से निकालेंगे. ये दूसरा हाइफा है, ये दो हाइफी है. दोनों भी जो ये हाइफी है, ये दोनों भी हाइफी एक ही फंगस के है, एक ही माइसेलियम के पार्ट है वो. तो ये जो हाइफा है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा इस तरह से.
दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहेंगे एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम क्या है? एंथ्रीडियम है मेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम। एंड ये दूसरा जो फंगस है ये इस पर डेवलप होगा, इस तरह से ये स्ट्रक्चर, इसे बोलेंगे ऊगोनिया, इसे बोलेंगे ऊगोनियम। ऊगोनियम ये भी हैप्लॉइड है, एंथ्रीडियम भी हैप्लॉइड है। फंगस का जो हाइफा है वो हैप्लॉइड ही रहता है। तो ये हो गए इस तरह से, ये अलग हो गए फंगस और ये अलग हो गया इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है इसकी? देखो नेक्स्ट इसके बाद की स्टेप यहाँ ड्रॉ करेंगे। ये एक हाइफा हो गया और ये दूसरा। बहुत ध्यान से ड्रॉ करना पड़ेगा इसको, क्योंकि सेम आना चाहिए, डायग्राम अलग नहीं होना चाहिए। इसके ये न्यूक्लियाई, यहाँ एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बन जाएगी। ये एंथ्रीडियम एंड ये जो है एंथ्रीडियम के अंदर उसका अपना न्यूक्लियस पड़ा हुआ है एंड ऊगोनियम के अंदर उसका खुद का न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। इसके बीच में एक ट्यूब बन जाएगी, दैट इज फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनी है। ये ग्रीन कलर से दिखाई, इंक खत्म हो गई, ब्लैक से दिखा देंगे। इसके बीच में जो ट्यूब बन गई, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज fertilization tube. This tube is called as fertilization tube. Next step इसकी जो next step है, next step में क्या होगा कि देखो ये हाइफा और ये दूसरा हाइफा, इसमें ये तो एंथ्रीडिया मतलब मेल सेक्स ऑर्गन, एंड दिस इज ऊगोनियम मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन, ऊगोनियम। थोड़ा छोटा बना देते हैं इसको। दिस इज एंथ्रीडिया एंड दिस इज ऊगोनिया। ये जो फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनी थी, फर्टिलाइजेशन ट्यूब से दिस फर्टिलाइजेशन ट्यूब, ये भी क्या है? फर्टिलाइजेशन ट्यूब। तो इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के जरिए एंथ्रीडिया में जो न्यूक्लियस था वो ऊगोनिया में आ गया। एंथ्रीडिया का न्यूक्लियस ऊगोनिया में आ गया। इसमें का साइटोप्लाज्म भी फ्यूज हो गया। जब साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी हो गई पहले बार, सबसे पहले प्लाज्मोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। फिर न्यूक्लियस अभी फ्यूज होने के हैं, तो ये हम इसे डाई कैरियोटिक स्टेज भी कह सकते। डाई कैरियोटिक स्टेज बहुत ही शॉर्ट है, एकदम कम समय के लिए डाई कैरियोटिक स्टेज। देन नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? नेक्स्ट स्टेज में ये यहाँ से ले लेते बेटा,
यहाँ से नेक्स्ट स्टेज में फिर से ये हाइफा, एक ही माइसेलियम का ये हाइफा और ये दूसरे माइसेलियम का दूसरा, एक ही माइसेलियम के दो हाइफी, ये यहाँ का और ये न्यूक्लियर एंड इज ऑल्सो यहाँ ये नेक्स्ट स्टेज क्या हो गई, नेक्स्ट स्टेज कैरियोगैमी हो गई। कैरियोगैमी मतलब नेक्स्ट स्टेज क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेज हो गए दोनों भी जो थे न्यूक्लियाई, दोनों भी न्यूक्लियाई फ्यूज हो गए, फर्टिलाइजेशन ट्यूब डिसइंटीग्रेट हो गई, मेल जो सेक्स ऑर्गन था एंथ्रीडिया, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, मतलब जो एंथ्रीडिया एंड वो जो फर्टिलाइजेशन ट्यूब है वो डिसइंटीग्रेट हो गई, यहाँ से सब डिसइंटीग्रेट हो गया वो, एंड ये जो है इसे बोलेंगे हम कैरियोगैमी, मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया, कैरियोगैमी मतलब क्या, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। हम इसे सिनगैमी का भी नाम दे देंगे, सिनगैमी हो गया फर्टिलाइजेशन। फिर ये जो स्पोर बना, ये जो बना इसे झाइगोट बोलेंगे, झाइगोट जैसा स्ट्रक्चर बना ना ये फर्टिलाइजेशन के बाद, झाइगोट बोल सकते हैं हम इसको। ये डिप्लॉयड है, ट्वाइस एन, इट इज़ डिप्लॉयड मीन्स इट इज़ ट्वाइस एन। नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी इसकी, नेक्स्ट स्टेज देखिए, ये नेक्स्ट स्टेज यहाँ ड्रॉ कर लेते हम। नेक्स्ट स्टेज ये हाइफा था, फिर ये दूसरा हाइफा, एक ही माइसेलियम के दो हाइफी, ये यहाँ पर जो झाइगोट बना था वो उसकी जो वॉल है बहुत मोटी हो गई, एकदम से ऐसी मोटी, एंड अब ये जो वॉल है थिक हो गई, थिक वॉल, तो ये बन गया ऊस्पोर, ये हो गया ऊस्पोर, दिस इज कॉल्ड एज ऊस्पोर। इसके अंदर का ये न्यूक्लियस ऊस्पोर, क्या बोलेंगे हम इसको, दिस इज कॉल्ड एज ऊस्पोर। तो ये ट्वाइस है मतलब डिप्लॉयड है ये ऊस्पोर, सो दिस इज कॉल्ड एज ऊस्पोर एंड ऊस्पोर इज डिप्लॉयड। बाद में ये जो ऊस्पोर है, ये ऊस्पोर इसमें मियोसिस होगा क्योंकि ये डिप्लॉयड है ट्वाइस एन, इसमें मियोसिस होगा, इसमें मियोसिस होने के बाद इसमें मियोसिस होगा, एंड आफ्टर मियोसिस के बाद इस तरह से ये हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, ये हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए मियोसिस के बाद। एंड ये जो यहाँ पर थोड़े निकाल देते हैं, मियोसिस हो गया इसमें, एंड अब ये बन गए एन, क्या बने ये एन, इसमें हो गया मियोसिस नहीं दिख रहा, थोड़ा यहाँ निकाल मियोसिस। तो इसमें मियोसिस होने के बाद ये से लिबरेट हो गए और इससे एक नया हाइफा बन सकता, ऐसा है ना। इसमें इट विल प्रोड्यूस न्यू हाइफी, मतलब नया फंगस इससे बर्थ ले सकता। तो ये इस प्रकार का जो गैमेटेंजियल कांटेक्ट है वो होता है oomaicetys में। किस में होता है ये, oomaicetys। तो इसीलिए तो यहाँ पर ऊस्पोर बना, तो ऊस्पोर किस में बनेगा, ऊस्पोर बनेगा oomaicetys में, oomaicetys। तो ये इस तरह से गैमेटेंजियल कांटेक्ट हमने कंप्लीट कर दिया जो oomaicetys में होता। इसके बाद जो है वो हम स्टडी करेंगे, इसके बाद का जो टॉपिक है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। तो आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो वीडियो पॉज करके। इसके बाद जो हम स्टडी करेंगे वो है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। नेक्स्ट गैमेटेंजियल
copulation. Gametangial copulation. Takes place between hyphae of different mycelium. Hyphae of different mycelium. Takes place between hyphae of different mycelium. ठीक है, अलग है gametangial contact and gametangial copulation. Copulation takes place between hyphae of different mycelium. मतलब एक ये फंगस है, दूसरा फंगस है, ये इसका माइसेलियम, इसका माइसेलियम, तो इस माइसेलियम का एक हाइपा और इस माइसेलियम का एक हाइपा, इसमें होगा गैमेटेंजियल कॉपुलेशन. देखो ये हाइपा मैंने निकाला, ये दूसरा, यहाँ तो यहाँ से ड्रॉ करना चालू कर देते. एक हाइपा यहाँ पर निकाला, एक हाइपा यहाँ पर निकाला, दूसरे कलर से ड्रॉ करते, ये रेड से ड्रॉ कर देते. एक हाइपा यहाँ पर निकाला, लाइक दिस. देखो ये यहाँ पर ऐसा एक सोलन पोर्शन डेवलप हो जाता और इस हाइपा में ऐसा सोलन पोर्शन डेवलप हो गया. तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, इसमें भी बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं और यहाँ पर क्रॉस वॉल नहीं है. तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है प्रोगैमेटेंजिया. क्या बोलेंगे इसको? प्रोगैमेटेंजिया. दो डिफरेंट, ये हाइपा और ये हाइपा दोनों भी डिफरेंट, दे बिलोंग्स टू डिफरेंट माइसेलियम. सेकंड स्टेज क्या होगी? सेकंड स्टेज ये एंड इसका ये गैमेटेंजियम इस तरह से, एंड ये थोड़ा सा ड्रॉ करने में गलती हो रही, ठीक से ड्रॉ करना पड़ता है इसको. ये हो रहा है, ये हो गया दूसरा हाइपा, ये हो गया एक हाइपा. इसमें ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका क्रॉस वॉल, ये जो है ये इमेच्योर गैमेटेंजिया. प्रोगैमेटेंजिया मतलब इमेच्योर, एंड ये हो गए गैमेटेंजिया. गैमेटेंजिया तो ये है मैच्योर. इस तरह से अब प्रोगैमेटेंजिया एंड गैमेटेंजिया, इसमें फ़र्क नज़र आ रहा बिल्कुल, ये मिल रहे. प्रोगैमेटेंजिया में क्या था? प्रोगैमेटेंजिया में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लिया है इसमें, और यहाँ पर क्रॉस वॉल नहीं. कहाँ पर? प्रोगैमेटेंजिया में. गैमेटेंजिया जो है वो मैच्योर है, प्रोगैमेटेंजिया इमेच्योर है. गैमेटेंजिया में एक तो यहाँ पर क्रॉस वॉल है और बाकी के सारे न्यूक्लियाई, जो बाकी सारे न्यूक्लियाई थे वो डिसइंटीग्रेट हो गए और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस बचा. इसमें एक बचा, इसमें एक बचा. तो दोनों भी, ये न्यूक्लियस ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है. इसमें अब नेक्स्ट स्टेज क्या आएंगे? नेक्स्ट स्टेज आएंगी सिनगैमी. ये हो गया इसके बाद का स्टेज. ये एंड ये देखो, इसके बाद का जो स्टेज है वो है सिनगैमी. इसमें
ये तो है क्रॉस वॉल, इसमें क्यों मिटाई मैंने। हाँ, ये गैमेटेंजिया और इसका ये गैमेटेंजिया, दोनों भी क्या हो गए, फ्यूज़ हो गए। दोनों गैमेटेंजिया फ्यूज़ हो गए। दोनों गैमेटेंजिया फ्यूज़ हो गए। फ्यूज़ हो गए मतलब क्या फ्यूज़ हो गया इनमें का, साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो गया। साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो गया। तो इसमें हो, ये जो है साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो गया, लेकिन न्यूक्लियस अभी फ्यूज़ होने क्या है। तो ये जो स्टेज है ये है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी अभी बताया, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, थोड़ी देर के पहले ही बता दिया था। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया, अभी न्यूक्लियस फ्यूज होने के है। और ये जो स्टेज दिख रही है डाइकैरियोटिक स्टेज है। डाइकैरियोटिक स्टेज मतलब 2 न्यूक्लियाई है, तो इसलिए डाइकैरियोटिक स्टेज। कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियाई। नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी, नेक्स्ट स्टेज ये होगी कि यहाँ से थोड़ी बची है तो हो जाएगी इतनी जगह में। ये हो गया एक, एंड ये दूसरा हाइफा। नेक्स्ट स्टेज में ये होगा कि ये फ्यूज हो गए। फ्यूज हो गए, ये एक न्यूक्लियस बना इसका, फ्यूज हो गए। न्यूक्लियाई फ्यूज हो गए। न्यूक्लियाई फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी। दिस इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी। कैरियोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, दो न्यूक्लियाई फ्यूज हो गए, तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी। तो ये इसे हम सिंगैमी बोलेंगे, सिंगैमी। और ये जो बना, दिस इज जाइगोट, इसे जाइगोट बोलेंगे। और ये जो है ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस कैसा है, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब ट्वाइस एन कंडीशन। अब नेक्स्ट स्टेज क्या आती है इसकी जो नेक्स्ट स्टेज है, वो जो नेक्स्ट स्टेज यहाँ ड्रॉ करेंगे हम नेक्स्ट में, ये इसका ये क्रॉस वॉल, ये इसका जो वॉल है, वो थोड़ा ठीक हो गया है। वॉल ठीक हो गया इसका, एंड बड़ा हो गया ये, तो इसे बोलेंगे हम अब जाइगोस्पोर। इसे क्या नाम देंगे हम, इट इज कॉल्ड एज जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर क्या नाम दिया मैंने इसका, जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर क्या है, डिप्लॉयड। जाइगोस्पोर क्या है, ये डिप्लॉयड है। देखो तो फिर ये जो जाइगोस्पोर है, ऐसे दिख रहा है ना बेटा, यहाँ ये जो जाइगोस्पोर है इट इज डिप्लॉयड। इससे मियोसिस होगा। इसमें क्या होगा, इसमें होगा मियोसिस, इस तरह से। मियोसिस मतलब ये N बन गया, ये N बन गया, ये N बन गया, ये N, ये डिप्लॉयड है, ट्वाइस N, ये ट्वाइस N है। इसमें मियोसिस हो गया, तो क्या हो गया इसमें, हैप्लॉयड। ये और ये जो स्पोर्स है, ये स्पोर्स फिर से नया हाइफा बना सकते। तो ये हो गया गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। देखो ये किस में होता है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन ये होता है ज़ाइगोमाइसिटीज़ में। कौन से फंगस में होता है ये होता है ज़ाइगोमाइसिटीज़। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, एग्जाम्पल क्या है इसका, इट टेक्स प्लेस इन ज़ाइगोमाइसिटीज़। और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट किस में हुआ था, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट oomaicities में, एंड गैमेटेंजियल कॉपुलेशन
जाइगोमाइसिटीज में oomaicites एंड जाइगोमाइसिटीज ये दोनों भी किसके ग्रुप है? फाइकोमाइसिटीज के। oomaicites एंड जाइगोमाइसिटीज बोथ आर ग्रुप्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में ही वो आते हैं। तो इस तरह से आज हमने जो फाइकोमाइसिटीज है इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है तो वो कंप्लीट कर दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम एस्कोमाइसिटीज एंड बेसाइडियोमाइसिटीज में जो रिप्रोडक्शन होता है वो हम स्टार्ट करेंगे।